Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ठीक है, तो पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद शुरू कर सकते। सही भक्त लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुरुन्मिलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्म। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सागजरातं सगण रघुनाथं साद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता शिक्षा। हे कृष्णा करुणा सिन्धु गोपेश गोपिका तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हम करोति वाचालं संगैते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यं नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश। आनंद लीला मही विग्रहाय हेमादि दिव्य छवि सुंदराय चैतन्य चंद्राय अनर्पिता चरिम चिराग करुणाय समर्पयितुं तद्ज्वालं प्रसां स्वामी श्रेय हरिपूरटा सुंदरः दुतीये कदम्बः सन्देह सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सच्ची। श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद महाजन हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। So now we will reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3rd, chapter 15, text number 1 and 2. The description of the kingdom of God. भगवान के साम्राज्य का वर्णन श्लोकम में पढ़ना। मैत्र उवाच प्रजापत्यं तु तत् तेजः करातेजो हनं विधि दाधारः वर्षाणि शतां शङ्कामानः सुरार्दनः। Translation. Shri Maitri said, "My dear Vidura, Diti, the wife of the sage Kashyapa, could understand that the son within her womb would be a cause of disturbance to the demigods. As such, she continuously bore the powerful semen of Kashyapa Muni, which was meant to give trouble to others for 100 years. Purport by His Divine Grace of Charanarya Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada. The great sage Sri Maitreya was explaining to the activities of the demigods, including Lord Brahma, when Diti heard from her husband that the son she bore within her abdomen would be
could be causes of disturbance to the demigod. She was not very happy. There are two classes of men, devotees and non-devotees. Non-devotees are called demons and devotees are called demigods. No sane man or woman can tolerate the non-devotees giving trouble to devotees. Diti, therefore, was reluctant to give birth to her babies. She waited for 100 years so that at least she could save the demigod from the disturbance for that period. Another sloka will be recited together. Loka tena hata loke loka kala hato jasaha anyaveda yan vishva srije vantaha vyati param disha. Translation. By the force of the pregnancy of Diti, the light of the sun and moon was impaired in all the planets, and the demigods of various planets, being disturbed by that force, asked the creator of the universe, Brahma, what is this expansion of darkness in all directions? Purport by Sri Savecharana Vedanta. It appears from this verse of Srimad Bhagavatam that the sun is the source of light for all the planets in the universe. The modern scientific theory, which states that there are many suns in each universe, is not supported by this verse. I understood that in each universe there is only one sun, which supplies light to all the planets. In Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita state is also stated to be one of the stars. There are many stars, and when we see them glittering at night, we can understand that they are reflection of light. Just as moonlight is a reflection of sunlight, other planets also reflect sunlight, and there are many other planets which cannot be seen by our naked eyes. The demonic influence of the suns in the womb of Diti expanded darkness throughout the universe. Hare Krishna. ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. Thank you for all assembled here, and I am very fortunate associate online Sangha group. Please keep blessing me. So I explained wonderfully Srila Prabhupada literature. Hare Krishna. तो अभी हम सब लोग हरे कृष्णा। तो थोड़ी सी ग्लोरीज हम लोग श्रीमद् भागवत की पढ़ेंगे, और ये स्टेटमेंट स्कंद पुराण से एक्चुअली भगवत गीता के बारे में। तो भगवत गीता इज द बिगिनिंग ऑफ द श्रीमद् भागवतम। तो इसमें ब्रह्मा जी ने कार्तिक महात्म्य के अंदर ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसका जो प्रभाव है पढ़ने का और सुनने का, वो कितना लाभकारी है, कितना शक्तिमान है, उसका हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इवन कि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि कितनी शक्ति हो। तो मैं इसका एक श्लोक पढ़ूंगा स्कंद पुराण का, इसके अंदर इसके अनुवाद में ब्रह्मा जी बोलते। तो वो जब हम सुनेंगे तो हो सकता है बहुत से भक्तों ने इसको पढ़ा भी हो। तो हम कार्तिक के महीने में श्रवण करने का जो शक्ति है, पावर है, उसकी महत्ता भी समझ सकते। कार्तिक मासे विप्रेन्द्रः यस्तु गीतं पठनरः तस्यः पुण्यफलं वक्तुं मम शक्तिर्न विद्यते। गीता यस्तु समं शास्त्रं
न भूतं न भविष्यति सर्वः पापहारी नित्यं जीतो कहा मोक्षदायिनी। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन एवरीडे गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसके उतने पुण्य जमा हो जाते हैं जब वो कार्तिक के महीने में श्रवण कीर्तन करता है गीता का या भागवत महापुराण का, तो इतने उसके पुण्य जमा हो जाते हैं कि उस पुण्य का वर्णन करने की शक्ति उसमें नहीं। ब्रह्मा जी गीता के समान कोई शास्त्र ना हुआ है और ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को करने वाली और मोक्ष देने वाली। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नर्क से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया। तो गीता के महात्म्य के अंदर भी एक जड़ ब्राह्मण की कथा है, जिसमें ब्राह्मण मुक्त हो गया गीता का पाठ करने से। तो हम शक्ति देख सकते हैं कि भागवत श्रवण करना, गीता पढ़ना कार्तिक महीने में कितना सर्वश्रेष्ठ बताया गया। लेकिन और सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंद में भी भागवत की शक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं। तो गंगा में नदियां सर्वश्रेष्ठ हम देखते हैं, और देवों में जो अच्युत है वो सर्वश्रेष्ठ, और वैष्णव में शिव जी सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और इसी प्रकार से पुराणानाम इदं, पुराणों में जैसे 18 पुराण, तो उन 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण को श्रीमद् भागवत, उनकी शक्ति। और एक और भागवत के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, 12वें स्कंद का ही ये श्लोक है, इसको भी पढ़ना चाहूंगा। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम, यस्मिन् परम हंसायम् एकम अमलं ज्ञानं परम पीयते, तत्र ज्ञानः विरागः भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् अविष्कृतं, तत् शृण्वन् सुपठन् विचारणा परो भक्त्या विमुच्येन नरः। श्रीमद् भागवतम इज द स्पॉटलेस पुराण, यानी बिना किसी मल के अमलम पुराण है ना, किसी प्रकार का कोई इसमें दोष नहीं है। तो संपूर्ण भगवत भक्ति से भरा हुआ। तो ये श्लोक यानी भगवान को, जैसे हम कहते हैं, रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वशक्तिमान है, जिसको कोई भी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उस भगवान को अगर पकड़ना हो सर्वशक्तिमान तो भगवान का, तो उसके लिए जो विधि है, साधन है, तो बताई हुई भक्ति। तो उस भक्ति के माध्यम से हम भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। तो भागवत महापुराण इसी साधना भक्ति का अंग बताया गया है। तो साधना भक्ति का लक्ष्य भाव प्राप्त करना है ना, और फिर भाव का लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना। तो साधना भक्ति के अंगों में वैसे तो 64 बताए गए, लेकिन 5 मुख्य बताए चैतन्य महाप्रभु। तो उन 5 के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण एक, तो 5 तो हमें करना ही करना। तो उसमें भागवत महापुराण एक है। तो उसमें कहना है कि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री बुद्धि रसदाय सेवन। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, और मथुरा वास करके धाम में वास करना, और श्री श्रद्धाए मूर्ति रस सेवा, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा। तो ये 5 साधना भक्ति का लक्ष्य। अगर कोई पूछे भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम क्या बताएंगे? मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम क्या बता सकते हैं? तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य। और साधना भक्ति का लक्ष्य वास्तव वो क्या है? ये 5 अंग, और इन 5 अंगों से हमें भाव की प्राप्ति होती है। तो उस भाव से फिर कृष्ण प्रेम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे नवकल्प, श्रीमद् भागवतम प्रमाणफलम प्रेम पुमर्तम।
तो उसी के पार्ट में ये कनेक्टेड श्लोक देखा जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रेम प्राप्त। तो भागवत के माध्यम से ही हम लोग भाव की अवस्था को प्राप्त होते हैं और फिर अंततः प्रेम प्राप्त। प्रेम तो राधा कृष्ण का शुद्ध प्रेम। तो यहाँ पर इसलिए श्रीमद् भागवत की रोज बताई। श्रीमद् भागवत इज द स्पॉटलेस पुराण, इट इज मोस्ट डियर टू द वैष्णवास, है ना। तो वैष्णव का सबसे प्रिय ग्रंथ है। तो हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत का पठन करते हैं, और ये सब श्रील प्रभुपाद जी के पास है। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का भी तिरुभाव तिथि है। तो अगर अंत में थोड़ा कुछ समय बचेगा तो हम प्रभुपाद जी का भी थोड़ा कर पाएंगे। तो सनातन गोस्वामी को भी जब चैतन्य महाप्रभु सपने में आए थे तो उन्होंने भागवत महापुराण किया, बोला इस भागवत महापुराण का पाठ करो, इसका पठन करो। तो भगवान स्वयं युग धर्म सिखा है। कलयुग में युग धर्म यही है, भागवत में श्रवण करना, हरिनाम कीर्तन करना, दर्शन करना कृष्ण के साथ, यही ध्यान है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो Vaishnavas because is described the pure and supreme knowledge of the Paramhamsas, क्योंकि ये परमहंसों के द्वारा ये दिव्य ज्ञान प्रकट किया गया है ना, उनके द्वारा रचा गया। तो this Bhagavata revealed the mean for becoming free from all material works। तो हमारी सारी भौतिक है ना जो आसक्तियां हैं उनको काट देगा श्रीमद् भागवत, यही एक शास्त्र। और क्या प्रकट करता है, और टुगेदर विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, रिनाउंसिएशन एंड डिवोशन, वैराग्य प्रकट करता है, भक्ति प्रदान करता है। एनीवन हु सीरियसली ट्राइज टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवत, जो भी गंभीरता पूर्वक इसको समझने का प्रयास करेगा, इसको समझेगा, है ना, वो प्रॉपर्ली हियर एंड चैंट, इसके श्लोकों का उच्चारण करना, उसको बोलना और प्रॉपर्ली इसको सुनना, चैंट इट विद डिवोशन, भक्ति के साथ, है ना। तो प्रोफेशनल लोग वो से जो कमर्शियल है तो भागवत को बोलते हैं, तो वो कमर्शलाइज उन्होंने किया हुआ, ठीक है, तो मायावादी कहलाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि श्रीमद् भागवत महापुराण को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो भक्ति के माध्यम से हम बिकम कंप्लीट, तो जाके हम कंप्लीटली मुक्त जाएंगे श्रीमद् भागवत। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं हमारे अपने श्लोक के ऊपर। एक किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि पूजा में और सेवा में क्या अंतर है। तो फिर श्रील प्रभुपाद की कृपा से मेरे पास प्रभुपाद जी का एक कोट था, जो कि वृंदावन के अंदर प्रभुपाद जी ने कर रखा। ये दोनों का डिफरेंस बताया, पूजा में और सेवा में क्या। तो पूजा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूजा का मतलब होता है कि लेन देन करना, यानी जब हम देवताओं की आराधना करते हैं तो देवताओं से हम इच्छा प्रकट करते हैं, देवताओं से, ठीक है। तो उसमें हम ये आपकी जितनी हमने सेवा की उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, तो ऐसे देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसको कहते हैं पूजा। लेकिन जो भगवान विष्णु की और कृष्ण की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, उसको सेवा कहते हैं। तो कोई भी कार्य होगा वो सेवा माना जाएगा, क्योंकि उसमें ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि उन पुरुषोत्तम भगवान वो सर्वशक्तिमान है, वो सुप्रीम है, ईश्वर है, परम कंट्रोलर है, हम सबके जनक है और हम उनके नित्य दास। तो दास के रूप में जब हम दास भाव से सेवा करते हैं, भगवान की एक्टिविटीज करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो सेवा माना जाता है। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से बताया। तो हमारा परम सौभाग्य कि हम श्रील प्रभुपाद के आश्रय लेकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, ये सेवा माना जाता है। तो अब ये अध्याय हम लोग 15वां अध्याय भगवान के साम्राज्य का बना। तो भगवान का जो साम्राज्य है उसका तो कोई भी वर्णन कर नहीं सकता, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारी मत के अनुसार जितना दिया गया है, डिस्क्राइब किया है, तो उसके माध्यम से हम भगवान को थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, उनके धाम के विषय में हम थोड़ा कुछ जान सकते हैं, भगवान के साम्राज्य के विषय में। अच्छा, भगवान की
54 विभूतियां हैं, है ना। भगवद गीता में भगवान ने कहा ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड चैप्टर 10 के अंदर भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग, तो उसमें 54 भगवान ने अपना ऑपुलेंस बताया, विभूतियां बताई, ऐश्वर्य, है ना। तो सोचिए कि वो भी हम नहीं समझ पाए अभी तक, उनके तत्वों को पूरा तरीके से नहीं अंडरस्टैंडिंग करता, तो भगवान का हाथ है साम्राज्य उसके विषय में कैसे समझे, तो इतना सरल नहीं। तो जितना हो सके हम हमारी मति अनुसार शुद्ध भाव से भगवान को शरणागत भाव से शरणागत मुद्रा में भगवान से ये प्रार्थना करते हुए लोग जो प्राप्त हुआ है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये अध्याय तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय, इसका पहला श्लोक और दूसरा श्लोक हमने पाठ किया। तो इस प्रकार से ये मैत्र मुनि ने पहले जो सृष्टि की जो रचना थी उसके साथ साथ में फिर भगवान वरादेव की महिमा के बारे में गान करते हैं, ठीक है। वरादेव का बारे में चर्चा करते हैं, उनकी ग्लोरीज के बारे में चर्चा करते हैं, और वरा भगवान ने हिरण्याक्ष को आगे कैसे मारेंगे उसके बारे में, और हिरण्याक्ष और फिर आगे चल के मैत्र मुनि कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा के बारे में फिर आगे आरंभ होता है। और जिनकी शुरुआत माता दीति जो है वो अपने गर्भ की जो गर्भ धारण जो संस्कार है उसमें कुछ त्रुटियां या गलतियां की, तो वहां से तो अब ये अध्याय है। अब माता दीति जो है वो जो प्रायश्चित है, यानी इस अध्याय में शुरू होता है कि दीति का जो प्रायश्चित मतलब जो गलती की उसके प्रति प्रायश्चित अपने पति के लिए, पति की आज्ञा वो कैसे फॉलो करती है उसके बारे में फिर आगे श्लोक शुरू होता है। तो मैत्र मुनि फिर आगे बताते हैं। तो दीति का अपनी गलतियों का जो गलती की उनको एक्सेप्ट करना, है ना, आज्ञा मानना दीति का, ये एक मुख्य गुण बताया गया, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी दीति के अंदर ये मुख्य गुण था, विशेष गुण। जो गलती होने के बाद एक तो होता है कि अगर गलतियां होती हैं तो आज कलयुग में इस प्रकार की मेंटालिटी है, गलती हो जाए तो भी स्वीकार नहीं करते। देख सकते हैं कि अभी जो वातावरण बना हुआ है ना, और आर्गुमेंट करते, लेकिन दीदी जो थी उन्होंने कश्यप मुनि की बात को मान लिया कि तुमने गलती की। तो ऐसे ही हम उदाहरण देखते हैं कि राष्ट्र का धृतराष्ट्र और आत्मविदुर का उदाहरण देखते हैं कि राष्ट्र भी गलतियों पे गलतियां कर रहा है, तो महात्मा विदुर उनको काफी समझाने का प्रयास करते हैं शास्त्र के माध्यम से, जो उचित व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से उचित कार्य करने चाहिए तो उसके बारे में शिक्षा देते। लेकिन धृतराष्ट्र जो था फिर भी नहीं मानता है ना। और इसी प्रकार से हम भीष्म देव का भी देखते हैं, है ना। क्षमा कीजिए, दुर्योधन का हम देखते हैं। दुर्योधन जो था, दुर्योधन का भी जब जन्म हुआ तो उस समय भी धृतराष्ट्र ने उनके बारे में एक्चुअली सिम्टम ऐसे, जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो लक्षण ऐसे प्रकट हुए कि सबसे पहले तो गधे जो है उनके रोने की आवाज, लगभग 100 गधे जो है रो रहे थे, 100 donkeys, है ना, क्रांग, तो ऐसे रो रहे थे। तो ये समझ में आ गया कि भाई ये कोई लगता है कि असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति पैदा हो। तो ऐसे कई प्रकार से लक्षण प्रकट होने लगे, है ना। यानी जैसे कि कोई अकाल पड़ने के लिए लक्षण कोई प्रकट होता है, इस प्रकार से लक्षण प्रकट तो समझ में आ गया। तो बाद में देखा गया और वरिष्ठ लोगों से भी मशवरा किया गया, तो भाई बोला कि भाई ये जो संतान होगी ये पूरे समाज को दूषित करेगी,
है ना, और कष्ट हो जाएगा। तो फिर फैसला ये किया कि महात्मा विदुर ने ये सलाह दी राजा धृतराष्ट्र को कि आप किसी तरीके से इसको जंगल में छोड़ दो या फिर इसका वध किया जाए। इस प्रकार से ऐसे सलाह दी गई, लेकिन धृतराष्ट्र जो वो नहीं माना। तो उसी के कारण हम देख सकते हैं कि पूरे साम्राज्य का उनका नाश हो गया, है ना, एक गलती के कारण। लेकिन तो दीदी ने भी ऐसे ही एक गलती की, है ना। और भक्ति सिद्धांत महाराज जो है एक एनालॉजी देते हैं इसके बारे में। वो कथा में एक्चुअली वो कथा ऐसी है जिसमें एक राजा था, उसके राज्य के अंदर बहुत सारे मंकीज थे, बंदर थे, वो बड़े शरारती बंदर। और उसका जो रसोई घर था और वो जो मंकी थे वो उसके भाग में बहुत सारे मैंगो का जो पेड़ होता है, यानी आम की जो भाग होता है, तो आम के पेड़ से बड़े बड़े मोटे मोटे आम निकाल कर खाते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताई थी स्टोरी। तो और इसी के संदर्भ में जो दीदी का जो गलती हुआ, तो वो आम जो है खाते खाते काफी मोटे तगड़े हो गए थे और इतने स्वादिष्ट आम होते थे। तो फिर एक दिन जो है वो बकरा जो था उसको भूख लगती थी, तो वो किचन में राजा के किचन में आता। तो बंदर जो है उसको, एक बंदर ने कहा कि अरे भाई इसको रोको, उसको मत आने दो किचन में, ठीक है ना, तो ये सब गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। तो बंदर ने कहा कि अरे कुछ नहीं है, जाने दो, चलने देते हैं ऐसे ही। तो बोला नहीं, अगर आपने इसको नहीं रोका, एक बंदर ने दूसरे सारे झुंड वाले बंदरों को मशवरा दिया, सलाह दी। तो वो नहीं मान रहे। तो बोला नहीं, ये अगर अपनी पूंछ अगर यहाँ से एक, अगर अपनी लकड़ी, समझ लकड़ी का काम, ये अगर वो जो चूल्हा जल रहा है उसमें से एक लकड़ी अगर निकाल लेगा तो उस लकड़ी से सब जल जाएंगे, तो उससे खतरा रहेगा, तो आप इसको निकाल, ये इसको भगाओ यहाँ से। तो वो सब नहीं माना। तो फिर ऐसे बकरा जो है वो आता रहा और उन्होंने फिर वो लकड़ी से क्या किया कि वो झुकी हुई लकड़ी ऐसे निकाली और बोला को, हाँ, भक्ति सिद्धांत ये कहा कि भाई जल्दी लकड़ी निकालेगा और फिर ये ले जाएगा, और फिर ये घोड़ा जो एक अस्तबल में घोड़े भी बंधे हुए थे, घोड़े को जला देगा, इस तरह करके सब कुछ जल जाएगा। तो फिर वो घोड़े को, तो वाकई में वैसे ही हुआ। वो जो बकरा था वो ऐसे ही वो जलती हुई लकड़ी निकाल के और फिर वो घोड़े के उसमें गया, तो घोड़े को जलाना शुरू किया। अब वो घोड़ा जो जलता हुआ जब आगे निकला तो वैसे करते करते पूरे राज्य को जला। तो इस प्रकार से ये एनालॉजी जो है वो भक्ति सिद्धांत महाराज देते हैं। तो बोला कि अगर हम जो गलतियां होती हैं अगर उसको स्वीकार नहीं करते तो उससे क्या नुकसान होता है कि उससे हमारा ही पूरे वंश का सर्वनाश होता है। इस प्रकार से जैसे भीष्मदेव थे, भीष्मदेव का उदाहरण है और पूरी शर्वा का। भीष्मदेव वायुव्रत माने जाते हैं। वायुव्रत का मतलब उम्र में भी सबसे बड़े, और उनकी विशेष गुण ये भी थे कि कंचन कामनी, यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे, किसी स्त्री के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी उसकी, और किसी पद के प्रति भी कोई आसक्ति, तो पद से भी उनका कोई मतलब आसक्ति नहीं, वैराग्य था। तो इस तरह पूर्ण वैराग्य थे और वायुव्रत भी थे, बहुत बड़े उम्र में भी थे, तो बहुत वरिष्ठ होते तो उनका आज्ञा मानना चाहिए। तो हालांकि भूरी शर्वा भी बहुत वायुव्रत थे, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह की विशेषता लगी। लेकिन भीष्म पितामह का भी दुर्योधन जो है आज्ञा नहीं। तो इसी कारण से ही देखते हैं कि पूरा साम्राज्य का विनाश हुआ। तो ये गलती के कारण, हमारी गलतियों से ही हम खुद विचलित होते हैं, परेशान। देखिए भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर जो प्रिंसिपल्स बताए और भागवत में भी कई लीलाओं के माध्यम से भगवान बताते, तो उसमें भगवान की शिक्षा में कोई कमी नहीं, कमी होती है हमारी एक्टिविटी के अंदर।
यानी हमारे जो कर्म है वो सही प्रकार से हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जो प्रिंसिपल दिए हैं, अगर उन प्रिंसिपल को हम सही रूप में और दृढ़ संकल्प होकर उसको करने का प्रयास करें तो कई प्रकार की गलतियों से बच जाए। और अगर छोटी मोटी कोई गलतियां होगी तो फिर उनकी सुरक्षा उनसे सुरक्षा कौन देता है? हमारे आचार्य लोग। इसीलिए हम परंपरा से, तो परंपरा क्या कहती है, वो हमें बहुत सारी गलतियों से अगर हो भी रही है तो उससे हमें बचा ले। इसलिए हमारा जीवन फिर आगे चल के और महिमा मतलब आनंदित होता है जब हम साधना करते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये देश जो शिक्षा दी गई इन भागवत में, तो अलग अलग प्रकार से अनेक श्लोकों में अनेक प्रकार से अलग अलग शिक्षा है। तो उन शिक्षाओं से हमको सीखना कि आने वाले समय में या अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है ना, और आगे जो समय आएगा उसमें हम लोग किस प्रकार से डील करना है ना, कैसे फेस करना है, क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना। और आध्यात्मिक संसार की या भक्ति की तुलना ऐसी की गई है कि जैसे कि लहरों, बहुत ही विशाल लहरों वाला जो समंदर होता है और उसमें आपने पैर लगानी है, उसको पार करना है, तो वो सोचिए कि कितना बल चाहिए, तो कितना कठिन होता है ये समझना है ना। तो आध्यात्मिक मार्ग में कई प्रकार की रुकावटें आई, तो ये रुकावटें वैसी ही हैं उस लहरों के समान, जिसको जो सहन कर ले, है ना, उसको सहन कर लेगा तो वो उस सागर को पार कर सकता है। और उसके लिए वो सागर भी कैसे हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा जी के, है ना, संसारीता ये पादा प्लवम पल्लम यशो मुरारे, है ना, गो वत्सा पदम पदम यद श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं कि गो वत्स पदम, यानी गो वत्स का मतलब होता है, गो का मतलब गाय होती है ना, और वत्स का मतलब गाय का जो बछड़ा, बछड़े के एक पैर का खुर का जितना निशान होता है उसमें पानी भर जाए, उसको लांगने जैसा होगा अगर हम भगवान के चरण कमल रूपी नाव के अंदर आश्रय लेते हैं, तो ये लाभ था। तो उसके लिए इतना सरल हो जाता, वरना फिर हम गलतियों पे गलतियां ही करते चले जाएंगे और अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, है ना, सीनियर का। तो हमारे जो घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञा मानना, अगर वो कृष्ण भावना भावित है अच्छे तरीके से, तो उनकी आज्ञा निश्चित रूप से मानना चाहिए। और अगर कृष्ण भावना भावित ना हो तो जितना हो सके आज्ञा माने, और लेकिन विशेष आज्ञा श्रील प्रभुपाद जी की और आचार्यों की हमने माननी चाहिए, जो कि हमारे सबसे वरिष्ठों में भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होता है, वरिष्ठ, तो उनकी आज्ञा हमें माननी चाहिए। तो फिर आगे जो श्लोक है तत्तेजा, इसके अंदर जो वर्णन करता है मैत्र मुनि, प्रजापत्यम तु तत् तेजः परा तेजो हनम दिति, है ना, तत् तेजा परा तेजो हनम दिति। तो यहाँ तेज की बात आ रही है। अब इस तेज जो था, है ना, दीति के गर्भ का तेज, ठीक है। एक दूसरा तेज हम देखते हैं कि जो गर्भ स्थापित हुआ, है ना, या कश्यप मुनि की जो ऊर्जा दीति के गर्भ में स्थापित हुई, तो वो जो ऊर्जा थी वो इतनी शक्तिशाली थी, उसका पावर कितना देख सकते हैं कि जिसकी हम बराबरी नहीं कर सकते। मतलब है कि दीति का गर्भ धारण करने से ही पूरे विश्व में अंधकार छा गया, है ना, पूरे विश्व की व्यवस्था बिगड़ गई, पूरे विश्व की। तो इस श्लोक के अंदर यही बताया गया कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि by the force of the pregnancy of Diti, the light of the sun and moon was impaired in all the planets. Impaired का मतलब होता है कि बिगड़ जाना, सारे लोगों की जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ी में आ गई, है ना। वो कैसे हो गई? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा वो अपना प्रकाश नहीं फैलाता, ये समझने वाला,
तो इतना जो तत्तेजः, है ना, तत्तेजः इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, तत्तेजः परा तेजोहम, इसका मतलब यही है ना। तो उनके जो ऊर्जा शक्ति है यानी वीर्य का इतना तेज था कि पूरे ब्रह्मांड में जैसे गर्भ धारण हुआ, पूरा ब्रह्मांड का प्रकाश मंद हो गया, पूरे ब्रह्मांड का हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा गर्भ धारण। हालांकि वो अनुचित समय में गर्भ धारण कार्य किया गया, है ना, लेकिन कश्यप मुनि ने फिर आगे बताया भी, है ना, कि तुम्हारी गलती के कारण ऐसा, तो फिर उन्होंने आज्ञा का पालन किया प्रायश्चित के रूप में। तो कश्यप मुनि का बैकग्राउंड ऐसा है, तो सप्त ऋषियों में से आते हैं कश्यप मुनि, और जो कश्यप मुनि की लगभग 13 पत्नियां बताई गई, उससे ज्यादा है ना जो पुराणों में, तो मेरे पास आई एम नॉट श्योर, लेकिन 13 का मैंने सुना है कि 13 पत्नियों का सुना है, लेकिन उससे ज्यादा बताई गई कश्यप, जिनमें से 2 ये प्रमुख थी, और ये प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, प्रजापति दक्ष, दीति और अदिति। तो दीति से सारे असुर प्रकट हुए और अदिति से जो है सारे देवता लोग आए। तो दीति को ये साधारण स्त्री नहीं है ना, और ये जो कनेक्शन है या ये जो भगवान की जो लीला है, जो वार्तालाप है, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्चुअली हम लोगों को रोल मॉडल भगवान देते हैं, है ना, हमारी मति को समझाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये तो सारी ट्रांसडेंटल या दिव्य सारा कार्य है भगवान का, है ना, आध्यात्मिक कर्म बताया गया भगवान, तो ये कोई साधारण नहीं है। भगवान के भक्त के और भगवान के आध्यात्मिक कार्य दिव्य, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जो तेज गर्भ का जो तेज बताया गया वो विशेष बताया गया। तो हम देख सकते हैं कि आजकल कलयुग में इवन के वैष्णव भी जो विवाह होता है वो भी वास्तव में वैष्णव विधि से नहीं होता, कई बहुत सी जगहों पे ऐसे देखा गया। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है विवाह करने की, तो वो वैष्णव सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, और वैष्णव जो गृहस्थी जो बहुत ज्यादा शरणागत गृहस्थी है, आइडियल गृहस्थी है, उनको बुलाकर और ऐसे भक्तों को बुलाकर मंत्रों का पाठ करके यज्ञ करते हैं और इंद्रिय संयम करते हैं। तो ऐसे बताया गया है कि गर्भ धारण की विधि और ये जो वार्तालाप है बड़ा सटल है, ठीक है, इसको समझना बहुत ही सूक्ष्म है, और जो भक्त है वही वास्तव में समझ सकता है, जो प्रभुपाद जी के साथ पढ़े या जो भागवत सुनता है। तो खासकर माताओं के लिए भी और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए ही शिक्षा है वास्तव में, ऐसा नहीं कि लेडीज के लिए है, दोनों के लिए शिक्षा है, और दोनों ही भगवान की सेवा के लिए वह गृहस्थी आश्रम में जा रहे हैं, और ये विशेष महान आश्रम बताया गया गृहस्थ, और ये भगवान ने ही बनाया। तो उन दोनों का काम यही होता है कि पति जो है पत्नी की सपोर्ट करेगा और पत्नी जो है पति का सपोर्ट करेगा, किसके लिए? भगवान की सेवा को दृढ़ बनाने के लिए, है ना, और भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। ये वास्तव में पर्पस है विवाह यज्ञ का, शादी करने, है ना, मैरिज जो करते हैं उसका एक्चुअल जो पर्पस है वो शास्त्र जो है ऐसे बनते हैं। तो बड़ा सूक्ष्म है और इसमें बड़ी तपस्या होती है, और ऐसे ही बताया गया कि अगर किसी को संतान की इच्छा है तो वो इच्छा को और संतान, तो वैष्णव यही चाहेगा कि मेरा भक्त जो है, मेरा पुत्र जो है वो बुद्धिमान हो, सुंदर हो, सर्वश्रेष्ठ कार्य करे, है ना, उसके दिव्य कर्म हो और लोगों का कल्याण करे, परिवार का भी उद्धार करे, समस्त जातियों का उद्धार करे। तो ऐसी संतान को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता है। और कलयुग की अगर बात करें तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि एटलीस्ट 1 साल तक हम लोगों को अगर इच्छा है गर्भ धारण करने की, तो 1 साल तक हम लोगों को
इंद्रिय संयम करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को भगवान की सेवा में शिफ्ट करना, है ना, शरीर की पूरी उसमें एंगेज रखना और समय के अनुसार हर चीज को देखते हुए संयम बनाते हुए, और ये चेतना को डेवलप करना मेन जो बात है। अपनी जो कॉन्शियस है, पति का और पत्नी का दोनों की जो चेतना है वो डेवलप करना कि हमारी जो संतान है वो भगवान का, ये भाव निरंतर उसको सुबह शाम तक ये सोचते रहे उस चेतना को। तो वो किसी को भी भक्त बनाना हो तो उसके लिए ये 4 चीजें तो चाहिए। वो क्या है? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड फिलॉसफी, है ना, चैतन्य महाप्रभु का। तो हरिनाम का जप करना, कीर्तन करना, है ना, और फिलॉसफी मतलब भागवत महापुराण सुनना, भगवान के सिद्धांत स्पष्ट हो फिर जाता है ना। उसमें बहुत से लोग भावुक होने चले जाते हैं या स्पेकुलेट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें अपने मनमानी ढंग से फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना, कि नहीं अभी दिया इधर भी ऑफर करना है, उधर भी करना है, बहुत सी चीजें भी करना है, और ऐसे भी अगरबत्ती चलानी है, ऐसे तो बहुत सारी मतलब अपने मनमानी ढंग से भी लगे। तो इस तरह वो जो चेतना है, कॉन्शियस, वो डेवलप नहीं होगा वास्तव में जो हमें प्राप्त करना है उसके। तो ये पूरा प्लान होता है, कोई भी चीज प्राप्त करनी वो मिलती है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल बताएंगे, अगर उसको हम फॉलो कर लेते हैं तो वो अपने आप चीज जो है वो आपको प्राप्त होगी, है ना, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो हर चीज जानते हैं। आगे चल के आप दूसरे श्लोकों में पढ़ेंगे इसी अध्याय में, जिसमें ये बताया गया कि ब्रह्मा जी का गुणगान हो रहा है और सेकेंडरी क्रिएटर वो है, तो उसका भी ग्लोरीज गान, और उसमें ये बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी आप सब जानते हो, यानी जो जगत के जो ब्रह्मा जी हैं वो सब जानने वाले हैं, हमारी सारी मनोभावना को वो जानते हैं, कई हद तक, मतलब कई हद तक सारी जो हमारी जितनी सोच है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी और समस्त ब्रह्मांडों के भी स्वामी है, तो वो सबकी मनोभावना को जानते हैं, चर अचर सबको जानने वाले। तो इसीलिए देवता लोग, ब्रह्मा जी इत्यादि सबको देखते हैं कि ये अपनी चेतना को कैसे, किस भाव से शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार ही उसको फल प्रदान करते। तो हम वैष्णव की शिक्षा अनुसार ये गर्भ धारण करते हैं, यानी चेतना को डेवलप करना मेन बात हुई है, कॉन्शियस डेवलप करना। तो पूरा कृष्ण भावना भावित होता है, तो एटलीस्ट 1 साल तक करना चाहिए, और अगर 1 साल भी ना हो तो मिनिमम ऐसे बताया गया कि 6 महीने तक आप कंप्लीटली मतलब जो है वो भौतिक वस्तुओं से डिटैच रहना, इंटरनली मतलब कार्य सारा बाहर का करना लेकिन इंटरनली डिटैच रहना, है ना, वैराग्य मतलब वैराग्य होना अंदर से पूरा, क्योंकि गृहस्थी को बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने, सब कुछ करने के बाद, है ना। तो वो कार्य करते हुए वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, और इंटरनली वो दे देना कि प्रमुख कार्य क्या है, वो भगवान की सेवा। तो ये कॉन्शियस जब डेवलप करता है तब जाके ऐसा तेज प्रकट होता है, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आई, है ना, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर एक ओजस होता है। ओजस का मतलब जब हम एक बल्ब है ऐसा, यानी जिसको तेज कहते हैं शरीर का ही, है ना, तो वो हम देखते हैं मूलाधार चक्र होता है ना, नाभि से नीचे, और ऐसे फिर नाभि तक पर हम तेज को ऊपर लेकर आते हैं, और फिर सीने तक, यानी हमारा जो चेस्ट है यहाँ तक लाते हैं, फिर कंठ तक लाते हैं, और ऐसे करते हुए मस्तक तक लेके आते हैं। तो जो मस्तक तक लेके आ जाते हैं तो वो कर्मचारी तेज हो जाता है, मतलब पूरा संयम होता है, उस तेज की वो शक्ति होती है। तो उस तेज से जो है हम भगवत भक्त जो होता है संतान, इसी संतान की हम लोग उत्पत्ति कर सकते हैं कलयुग में, तो भगवान का भक्त। तो अभी हम देखते हैं कितने ऐसे आइडियल गृहस्थ हैं जो कि ऐसे सारे सिद्धांतों को जानते हुए और बहुत अच्छे तरीके से, आइडियल तरीके से अपने कर्म को करते हैं, उठना बैठना चलना सब, और इस प्रकार से तो वो ऐसा तेज प्राप्त करते हैं। तेज जैसे एक उदाहरण उसका भी दिया गया है राजा भरत का। वो स्टोरी मुझे पूरी पता नहीं, लेकिन राजा भरत का जो जन्म हुआ था उससे पहले जो उनके पिता थे, कोई बता सकता है कि राजा भरत के पिता कौन थे? हरे कृष्णा।
नहीं प्रभु, मैंने कभी सुना नहीं उनके बारे में, मुझे नहीं नहीं पता। सुना? ग्रुप में किसी को पता है तो बता सकता है। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये असल में राजा भरत ये वो वाले हैं। एक तो ऋषभ, नहीं वो ये जो पांडवों के जो वंश में आए राजा भरत, उनके। अच्छा, उनको पूछ रहे हैं आप? हाँ वो राजा, तो वो जो राजा थे वो राजा भरत के पिता हुए। उसमें वो जो राजा थे वो एक सुंदर कन्या थी किसी वन में, बहुत ज्यादा सुंदर कन्या थी, तो उनसे आकर्षित हो गए। और फिर बाद में वो उनके साथ संसर्ग करना चाहते थे शारीरिक रूप से, और इस तरह तो जब ऐसा हुआ तो फिर उनसे संतान उत्पत्ति हुई। अब उनको पता नहीं चला, नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो देखा तो संतान की उत्पत्ति हुई है, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर प्रजा को पता है कि भाई ये मेरी संतान है, और ऐसे मैंने क्या उनको स्वीकार किया, और फिर वो नाम पड़ा राजा भरत इस प्रकार से। तो वो तेज जो होता है वीर्य का, तो यहाँ बताया गया है। और जिस प्रकार से राजा भरत कितने बड़े हम देखते हैं कि भक्त हुए, है क्या नहीं, पांडव के वंश, पांडव से पहले जो आए, पांडव उसके वंश में आए, तो कितने महान राजा हुए और उसकी शक्ति का प्रभाव पूरे विश्व में फैला। तो इस तरह हम देख सकते हैं ये तेज का प्रभाव ऐसे होता है। तो जो मैं बता रहा था कि हमारे शरीर के भीतर भी एक ओजस होता है, तो वो जब हम ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं, प्रयास करते हैं पूरे तरीके से संयम करने का, तो उसके विधि विधान बहुत सारे बताए गए, कैसे खान पान क्या क्या करना, जितना हो सकता है वो अपना बचाव करता है, बाकी भगवान अच्छा करता है। तो उसका जो तेज बढ़ जाता है। तो तेज बढ़ने का मतलब है कि वो बहुत सारी चीजों में मतलब एक इतना क्वालिफाइड नहीं था या बहुत सारी, लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसे अद्भुत कार्य कर जाता कि कोई उसकी बराबर नहीं कर सकता उस तेज के प्रभाव से। जैसे तो कश्यप मुनि कोई ऑर्डिनरी नहीं, आप सोचो कि 13 तो इस पत्नियां बताई गई, तो हम देख सकते हैं कि उसने अपनी कॉन्शियस को डेवलप किया था पूरे तरीके से, भगवान की चेतना में लीन रहते थे। उनका भोग करने का कोई भाव नहीं होता कश्यप मुनि, है ना। और सप्त ऋषियों में तो ऐसे कोई साधन ऋषि तो नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि वो जब ये दीति की इच्छा थी, वास्तव में कश्यप मुनि की नहीं थी, है क्या नहीं। तो पिछले अध्याय में देखा होगा। तो देखिए, लेकिन क्या है कि वो गलती हुई और कश्यप मुनि ने दीति को बताया भी, जो आज के श्लोक में बताया। तो दीति को जब पता चला तो दीति ने क्या किया, उस तेज को अब देखा कि भाई ये तो गलत समय में एक्शन करने की वजह से क्या हो गया कि असुर प्रवेश कर गया, इंटर। असल में तो ये असुर जितने भी होते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो हमारे अंदर प्रवेश कैसे करती है, ये अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक में बताई गई। असल में हमारे तेज को खत्म कर, है ना। तो उनको मौका चाहिए होता है, वो ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ मौका लगे। कली जो है ये तो मौका ढूंढता है, कली ये मौका अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है कि कहाँ मौका लगे कि मैं अपना जाल बिछाऊं, है ना। तो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर प्रभुपाद जी ने जो इतनी मेहनत करके इस सोसाइटी को बनाया, उसके अंदर भी कुछ भक्तों के माध्यम से जो उनका जन कीर्तन अच्छा नहीं है ना, तो कली क्या करता है कि उनके अंदर बैठकर और कली का अपना प्रभाव डालता। तो इसलिए भक्तों के बीच में भी संगठन नहीं हो पाता, है ना। ये सब हमारा प्रैक्टिकल हम सबने देखा होगा। और साधना सेवा करना, उनकी संगति करना, ने फिर वो भी वैसे ही हो, और वो फिर क्या उत्पाद मचाते हैं, है ना। तो उसमें जो बेचारे बहुत ज्यादा भक्ति सेवा में जुड़े हुए हैं, जिनका मासूम चरित्र है ना, भक्त मासूम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये ऐसे लोग जो है हिपोक्रेटिकल मटेरियलिस्टिक डिवोटी बोलते हैं इसको। तो वो क्या करते हैं कि उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं भक्तों, है ना, और फायदा उठाकर फिर उत्पाद मचाते हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, इसके लिए फिर भागते हैं। तो ये समझने वाला है कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो हमारे आचार्य ने क्या बोला, केवल शुक्र और विष्टा। आप देख सकते हैं कि हमारे आचार्य बोलते हैं शुक्र जो सुअर होता है उसका जो मल है उसके बराबरी की गई, है ना। ऐश्वर्य की लाभ पूजा प्रतिष्ठा जिसकी इच्छा है ना, कंचन का की सोच, उस टॉयलेट के बराबर, है ना, सुअर के टॉयलेट जो कि खुद भी मल खाता है, तो जो मल खाने वाले का मल कैसा होगा,
कितना हम देख सकते हैं कितना गिरा हुआ कॉन्शियस है ये। सोचे तो वो सुअर ही बनेगा। तो ये इसी कारण से होता है ना, भौतिक भोग करने की इच्छा रहती है, प्रभु बनने की इच्छा रहती है। राजा इंद्र की घटना में जो गोवर्धन की जो अभी गोवर्धन पूजा हम सबने मनाया, तो उस घटना में भी क्या है, राजा इंद्र ने जो भगवान की स्तुति की तो वहां पे वो समझ गया ये परम भगवान है। 7 दिन तक वैष्णव को कष्ट दिया और भगवान की स्तुति करके फिर वो आखिरी में बोलते हैं, हे प्रभु आप ही असली गुरु हो वास्तव में, क्योंकि परम गुरु तो भगवान है। और इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल इस लीला में भी। तो लेकिन उसमें भगवान ने फिर जब 4 श्लोक भगवान बोलते हैं आगे, और फिर आगे चल के सुरभि माता जो गाय थी वो स्तुति करती है 3 श्लोकों में। ठीक है, तो राजा इंद्र को भगवान ने ये बोला कि तुम वापस अपने पद पर जाओ और अहंकार से रहित होकर अपना पद संभालो, है ना, और असली इंद्र मैं हूं, भगवान ने बोला, है ना। और सुरभि ने भी ये बोला कि असली इंद्र आप हो, आप ही इंद्र पूजा होनी चाहिए। बाद में फिर उनको दूध से अभिषेक किया, है ना, और फिर नाम पड़ा गोविंद कुंड वहां पर। तो यहाँ पर भगवान इस संसार में इस मिथ्या अहंकार के प्रभाव के कारण ऐसी गलतियां करते करते हम और ज्यादा डर की ओर जा रहे हैं। और भगवान ये सब लीला करने, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर लीला करते हैं, राजा इंद्र के साथ मिलकर ये लीला करी, अहंकार को कैसे नष्ट करना है ना, मिथ्या अहंकार में जीव कैसे फंस जाता है ना। दीति ने किस प्रकार से संध्या समय में गलती करी, गर्भ धारण किया, उस गलती तक देखिए कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, है ना। पूरा आसुरी साम्राज्य जो है वो उत्पन्न हो गया, है ना, इनके कारण। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की आसुरी ये सब इनके कार्यों को देखकर और भी ज्यादा असुर बनना शुरू किया। तो ये समझने वाला है ना। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षा ये दी गई है कि अगर शास्त्र की विधि अनुसार हम लोग कार्य करते हैं अपने अपने आचरण में, तो हमेशा हम सुखी रहेंगे और बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। अब हम आते हैं कि प्रायश्चित के ऊपर, जिसमें अदिति का जो गुण था उसी पे वापस आते हैं कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया, वरिष्ठ की, है ना, वैष्णव की आज्ञा का पालन किया, मतलब अपने पति की आज्ञा का मान लेना, गलती करके और फिर उसको एक्सेप्ट करना, ये विशेष गुण। तो इससे क्या है, समाधान हो जाएगा, है ना, हमें रास्ता मिल जाएगा, सलूशन मिल जाएगा। तो दीदी ने जब कश्यप मुनि ने उनको बताया कि इस प्रकार से तुम्हारे घर में असुर प्रकट हुए, तो अब दीदी ने देखा कि अरे गलती हो गई, अब क्या करें। तो फिर आज्ञा उन्होंने मानी। तो फिर यहाँ पे बताया कि 2 प्रकार के मतलब ग्रुप होते हैं, या बताया गया कि देवता और असुर। ठीक है, असुर जो है वो नॉन डिवोटी, मतलब 2 प्रकार के डिवोटी, एक डिवोटी एक नॉन डिवोटी। असुर जो है वो उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति हो और वो दूसरों को कष्ट पहुंचाते। देवता जो है दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन देवता भी कुछ देवता सकाम कर्मी है, लेकिन कुछ प्रमुख देवता ऐसे हैं जो कि शुद्ध भक्ति है, तो भगवान की लीला में सहायक बनते। तो दीदी जो थी, दीदी ने अपना गर्भ जो था वो 100 साल तक धारण किया, इसकी रक्षा के लिए कि देवताओं को कष्ट हो जाएगा। कश्यप मुनि ने बोला, है ना, कश्यप मुनि ने बोला कि अब ये तो असुरी गर्भ प्रविष्ट हुआ आपके अंदर, तो ये तो सबको, पूरे ब्रह्मांड को नुकसान हो जाएगा, सबको मुसीबत में डाले, कष्ट में डाले, तो क्या करें। तो अदिति जो है यहाँ पर उनका भाव बताएगा, है ना। तो क्षमा की दीदी का, तो दीदी जो थी वो देवताओं को कष्ट नहीं देना चाहती। हालांकि दोनों बहनों में आपस में परस्पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि वो असुर की माँ है, ये देवताओं की माँ है, तो कोई ना कोई झगड़ा बना रहता था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था। लेकिन यहाँ पर अब शुरुआत की बात है, तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं, बिल्कुल दीदी जो थी बिल्कुल पवित्र भाव वाली, क्योंकि कश्यप मुनि के संग में थी, इस कारण से। तो उन्होंने 100 साल तक इस ऊर्जा को बनाए रखा। तो 100 ईयर्स, 100 साल तक आप देखिए कि गर्भ को बचा के रखना, है ना, ये कोई साधारण बात नहीं।
100 साल, अभी हम देखें कि कलयुग में हमारी कितनी एज है, 100 साल भी नहीं है पूरी, है ना। और सतयुग में 10 लाख साल होती थी, क्षमा कीजिए 1 लाख साल, त्रेता युग में फिर 10 लाख साल, द्वापर युग में 1000 साल, और कलयुग में तो 100 साल भी पूरी नहीं। तो आप देखिए कि माता दीति ने, क्षमा कीजिए अदिति ने, क्षमा कीजिए दीति ने कि 100 साल तक गर्भ को बनाए रखा ताकि ब्रह्मांड का वातावरण वैसा ही बना रहे, देवताओं को कष्ट ना, देवताओं की रक्षा के लिए सब, है कि नहीं। तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये वास्तव में भगवान लीला तो हमारे लिए कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि हमारी इतनी मति नहीं है इतना सालों तक गर्भ को धारण करके, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एक प्रसंग हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी जितनी सोचने की शक्ति है ना, और पहले के समय में ये सब जो लीला हुई भगवान के साथ, ये कोई साधारण लीला नहीं है। तो उनका युग के प्रभाव अनुसार और भगवान के ही लीलाओं में सहायक है, तो इसलिए ये आध्यात्मिक कार्य है ना। तो वो सिर्फ हमारी रोल मॉडल करके हमको ये सिखा रहे हैं। तो कलयुग में फिर हमको किस तरीके से इन वस्तुओं को लेना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है, वो समझने वाला। एक तो ये है कि अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में अगर भीमसेन जो था उसकी हाइट लगभग 20 फीट कुछ बताई गई, 20 फीट हाइट। कलयुग में तो ऐसी हाइट हमको देखने को नहीं मिलती, 60 फीट भी बहुत मुश्किल से कोई पूरी दुनिया में कुछ लोग होते हैं देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं 20 फीट हाइट कितनी ज्यादा। तो जब भीमसेन जब हनुमान जी से मिला तो हनुमान जी से उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि रामायण में हमने तो आपका बहुत बड़ा पराक्रम सुना है हे हनुमान, और मेरी ये जिज्ञासा है कि आप जिस प्रकार से अपना रूप को धारण करता है तो आप मुझे क्या वो रूप दिखा सकते हैं। देखिए ये द्वापर युग की घटना, ठीक है। तो वहां पर जब भीमसेन को हनुमान जी ने अपना, पहले तो हनुमान जी ने कहा कि तुम नहीं देख सकते, ये अद्भुत लीला है, तो तुम देख नहीं सकते। तो वहां पर भीमसेन ने बोला कि नहीं मुझे देखना है। तो फिर हनुमान, अच्छा ठीक है तुम्हारी इच्छा है। तो हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा करने के लिए खाली स्टार्ट ही लिया था, स्टार्ट लिया, अभी तो पूरा दिखाया नहीं हनुमान जी ने अपना, सिर्फ स्टार्ट ही लिया था। तो वहीं पे भीमसेन जो है धराशायी हुआ। भीमसेन बोलते कि नहीं नहीं बस ठीक है रोक दीजिए, अब मैं इसको देखने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो भीमसेन देख नहीं पा रहा था। इसी प्रकार से हम विराट रूप की बात करते हैं जो भगवद गीता में यूनिवर्सल फॉर्म अर्जुन को भगवान ने दिखाया था। तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि थी, अर्जुन देख नहीं पा रहा था। वो भी द्वापर युग की घटना है और ये भी द्वापर युग की घटना है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देवता लोग भी जो हैं, देवता है ना, उनको भी देखना बहुत मुश्किल है हम सब बद्ध जीव के लिए। तो भगवान तो वो दूर की बात, अब भीमसेन हनुमान जी के उस रूप को नहीं देख पाया, है ना। तो ये युग अनुसार तेज का प्रभाव होता है, अपनी उम्र के अनुसार और एज फैक्टर और युगा एज फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमारा तेज का इन्फ्लुएंस होता है। इस प्रकार से जैसे हमारे वैष्णव की अगर हम गुणगान सुनते हैं तो बोलते हैं कि एक वैष्णव काफी पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इतने सारे वैष्णव है और वो बात भी आए तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। वो बात बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इस कलयुग के एज फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमारे आचार्य लोग युग धर्म का जो प्रोसेस दिया है उसके अनुसार ही वो इतना ही एक्शन करके दिखाता है, क्योंकि हमारी मति ये समझ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं। और फिर अंतिम में ये बोल के हम समाप्त करेंगे, थोड़ा प्रोपाची कर लेंगे 10 मिनट और आप कर लेंगे। तो इसमें एक बात है कि ये जो जीव है जो गर्भ धारण के विषय में मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा फिर से। तो गर्भ के अंदर जब
ऊर्जा प्रविष्ट होती है, ठीक है, वो हमारे शरीर के अंदर से ही होता है, ठीक है। तो वो जो ऊर्जा है ना, जिसको जीव बोलते हैं, ठीक है, वो जीव जो है वो जीव कैसे आता है, इसका थोड़ा फंक्शन देखो। जब कर्मी जीव जो होता है, जो भौतिक ब्रह्मांड में ही चक्रव्यूह में फंसा हुआ, जब वो स्वर्गलोक में होता है तो स्वर्गलोक से फिर वो बादलों में भेजा जाता है। मान लीजिए कि अगर उसका स्वर्गलोक का पुण्य समाप्त हुआ है तो इमीडिएटली वो धकेले जाते हैं, मतलब वो पता नहीं चलेगा कि अरे ये देवता कहाँ चला गया, ये तो अभी हमारे साथ में था। जैसे ही उसका पुण्य कर्म समाप्त हुआ, एंड हुआ उसका अकाउंट पुण्य कर्मों का, इमीडिएटली वहां से एकदम से आउट कर दिया जाता है स्वर्गलोक से। और वो आउट जब किया जाता है पता नहीं चलता है। देखिए भगवान का जो कानून है कितना स्ट्रांग है प्रगति, है ना। मृत्यु भी ऐसी आती, पता नहीं चलता, इमीडिएटली मर जाता है जी, है ना। तो इसी प्रकार से जब वो स्वर्गलोक से खेला जाता है तो वो सीधा धरती पे नहीं आता है, वो जाता है यक्ष लोक, राक्षस लोक में जाता है ना। और यक्ष लोक में फिर क्या करते हैं, राक्षस जो यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, उसको नोच नोच कर खाते हैं, उसको नोचते हैं। तो जैसे उसको नोचते हैं तो उनके आंसू बाहर निकलते हैं, इस जीव वो आंसू जैसे बाहर निकलते हैं, वो आंसू जो थे वो बादलों में चले जाते हैं, प्रवेश करते। मतलब जब सूर्य अपना ताप लगाता है तो उस ताप से फिर वो आंसू जो होते हैं वो उस बादल में जाते हैं, और वो बादल के माध्यम से वर्षा होती है। वो वर्षा जब गिरती है पृथ्वी पर तो वो पौधों के अंदर जाती है। वो पौधे जो है जब वो बड़े होते हैं, उसमें जो फल निकलता है या सब्जियां उगती हैं जिससे वेजिटेबल्स, वो जब जीव जो है उसको पका कर और फिर उसको आहार मतलब खाता है, तो वो जो है ऊर्जा उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। वो ऊर्जा जो होती है फिर जब गर्भ धारण के समय में संस्कार होता है ना, जीव उत्पत्ति के, तो उसके गर्भ में धारण होता है। इस प्रकार से ये फंक्शन बताया गया। तो जीव जो है इस प्रकार से पुण्य समाप्त होने के बाद ऐसे नीचे आता है। एक फंक्शन ये है ना। अब स्वर्गलोक से ऊपर की बात की जाए, ठीक है ना, अलग अलग लोग हैं स्वर्ग से ऊपर। तो स्वर्ग लोग में है तपो लोग, जन लोग, है ना, और सत्य लोग। तो वहां के भी फंक्शन इस अलग थोड़े से और हायर कैटेगरी के दिया, तो कहाँ से किधर से अलग अलग लोगों से होता हुआ आता है ना। तो पूरा डिटेल तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन यह कि कुछ जो मुझे जो पता था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैं हम यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जीव जो आता है, तो कंक्लूजन पॉइंट यही है कि इन श्लोकों का कि किस प्रकार से अपने तेज को सुरक्षित रखे, है ना। और उसके लिए फंक्शन ये है कि भगवान का हरि नाम भागवत का श्रवण करना। और जो भी मनोहर प्रभु है उन्होंने ये ऑनलाइन संचार शुरू किया है, ऐसा देखने के पूरे विश्व में इस्कॉन के केंद्रों में सब जगह पर, है ना, ये शिक्षा दी जा रही, ठीक है, कर रहे हैं। तो ये कलयुग में अद्भुत कार्य है, और जो भक्त इन कार्यों में जुड़ रहे हैं, है ना, तो वो इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयम करके अपने तेज को बढ़ाकर अपना अद्भुत कार्य कर सकते। इसके अलावा कलयुग में और कोई फंक्शन नहीं है कि कुछ अच्छा कार्य कर सकते, है ना, और अपने आप को सुखी भी रख सकते, है ना। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जटिलता है कोई, तो उनको वो फेस भी कर सकेगा अगर अपने तेज को वो सिक्योर करके कृष्ण कॉन्शियस यानी चेतना को अपने डेवलप बनाए रखे। इसी को कहते हैं तेज। जिसकी चेतना बनी हो उसका तेज अद्भुत कार्य कर सकता है। तेज मेन फंक्शन ये, चेतना जिसकी शुद्ध है, ये बात, ठीक है। तो ये कंक्लूजन देखते हैं, तो और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और श्रील प्रभुपाद जी का आज तिरुभाव तिथि महोत्सव है, और श्रील प्रभुपाद इस विषय में शास्त्रों में वैष्णव की महिमा के बारे में कई श्लोकों वर्णन किए गए हैं। श्रीमद् भागवत के 15 स्कंद के अंदर भी धृतराष्ट्र के प्रसंग के अंदर
ये महात्मा विदुर जो है श्लोक बोलता है, भावाद्वेदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन वदा। जो महाभागवत होते हैं अपने हृदय में भगवान को, परमात्मा को धारण करते हैं। तो जो अपने हृदय में भगवान को धारण कर ले, देखिए भगवान का एक दृष्टि पूरे विश्व को गर्भ गर्भ मतलब वो कर देता है ना। यानी महाविष्णु जब दृष्टिपात करता है तो क्या होता है, उनकी दृष्टि से ही पूरा ब्रह्मांड के तत्व बनना शुरू हो जाता है कि नहीं। तो सोचिए कि भगवान साक्षात वही परमात्मा के रूप में महाविष्णु अपने दूसरे शरदुक्षाई विष्णु के रूप में जब आते हैं परमात्मा, तो सबके हृदय में निवास, तो कितने शक्तिशाली है परमात्मा, है ना। जब वो उसको हृदय में अगर कोई धारण कर ले तो उसका मुकाबला कौन कर सकता, कोई नहीं कर सकता उसके बाद। वो शुद्ध महात्मा होता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध महात्माओं में जिसके हृदय में निरंतर परमात्मा वास करते, वो श्रील प्रभुपाद, तो उनका आज तिरुभाव तिथि का, है ना। तो भावाद्विदा भागवता तीर्थ भूत स्वयं विभु, तीर्थी विभु मतलब ये परमात्मा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तो इनके अंदर इतनी शक्ति रहती है जो परमात्मा को हृदय में धारण किए रहते हैं, जिनकी चेतना बिल्कुल शुद्ध रहती है, कृष्णवान भावित होता है। तो वो क्या करते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिस भी स्थान पे वो चले जाते हैं। एक होता है कि तीर्थ में जब हम जाते हैं तो तीर्थ हमको पवित्र करते हैं, लेकिन तीर्थ को भी जो पवित्र कर दे, जो तीर्थों को भी जो पवित्र करता हो, उसको कहते हैं महात्मा। ये श्रील प्रभुपाद, है ना। तो बाबरी स्ट्रीट में जब श्रील प्रभुपाद जी आते टॉम कैंपस के उठाते, आज भी उस जगह की आराधना होती, लोग परिक्रमा करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, है ना। तो वो जगह तीर्थ स्थान बन गया है कि नहीं। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है प्रभुपाद जी के पास। तो डिसअपीयरेंस डे का मतलब यही होता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, है ना। तो फॉर द सोसाइटी एंड ऑल मैनकाइंड, जितने भी प्रजा है उसके लिए कंट्रीब्यूशन, उनका जो हम देख रहे हैं योगदान श्रील प्रभुपाद जी, वो कितना है विशेष, जिसकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना। तो खुलने के लिए तो पूरा समंदर है, प्रभुपाद जी का बराबरी करना बहुत मुश्किल, और इतनी हमारा सामर्थ्य नहीं प्रभुपाद जी के विषय में बोलना। तो ये भागवत का श्लोक इस तरह बोलता है, और वो एक जगह और भी कहता है कि जिसमें ये बताया गया कि थोड़े से संग की जो संगति होती है, कौन सा श्लोक है वो, तो श्लोक के अंदर ये स्वर्लोक न पुनर्भवम भागवती संगी संगस्य, है ना। तुल्यमा लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भागवती संगी संगस्य मर्त्यानां विनाशः। तो हम कंपेयर नहीं हो, तुल्य का मतलब होता है कंपेयर करना। भागवत के थोड़े से संग, जो महाभागवत उनका थोड़े से संग का कंपेयर हम स्वर्गलोक के सुख से, है ना, और इस प्रकार से किसी प्रकार के ऐश्वर्य से नहीं कर सकते। तो महाभागवत का संग, तो हमारे साथ में हम लोग महाभागवत ना, हम तो साधना भक्ति में है, महाभागवत के आगे का पालन करने वाले साधना भक्त इसको कहते हैं, वैदिक साधना भक्ति के साधक है। तो हम उस महाभागवत का गुणगान करते हैं साधना भक्ति को, तो उनकी शक्ति से हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे इस तरह महाभागवत के आशीर्वाद से, है ना। हमारी इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जिनका हम गुणगान करते हैं, जिनके शास्त्रों को पढ़ता है, उनकी शक्ति से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी कार्तिक महीने में, आज अभी जो डिसअपीयरेंस डे प्रभुपाद जी का 47 में आया, आई थिंक, शायद आई एम राइट प्रभु जी, 47 डिसअपीयरेंस डे श्रील प्रभुपाद 47वां ये शायद। और श्रील प्रभुपाद जो है वो कुछ उदाहरण लेंगे थोड़े, तो उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये 1966 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इस्कॉन सोसाइटी के नाम से हम पूरे विश्व में जान रहे हैं। और उसके बाद 1972 में बीबीटी बना, प्रभुपाद बीबीटी रजिस्टर किया और बीबीटी बना।
तो ये जो संस्था है पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, और अभी हम देख रहे हैं कि इनका प्रचार भी सर्वश्रेष्ठ पूरे विश्व में फैल रहा है ना। सोसाइटी जितने भी लोग हैं आधार इस संस्था को ही बनाते हैं, है ना। मटेरियल यहीं से लेते हैं, है ना, और जो भी कंपटीशन लेते हैं इसी संस्था से ही होता है। वो अपना ग्रुप बनाते हैं लेकिन अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन लेते हमारे से ही, प्रभुपाद जी के शास्त्रों से ही, है ना, और उन्हीं के ही लोगों को देख के कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं उनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। दुनिया खत्म, ये सब अलग अलग संस्थाएं बन रही है, खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रभुपाद जी का संस्था हमेशा रहेगा। हम भी खत्म हो जाएंगे लेकिन ये सोसाइटी हमेशा रहेगी, और यही हमारा असली घर है। क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारे असली घर जाने के लिए, और असली घर में जाने के लिए हम लोगों को एक ऐसा साधन चाहिए जहां से वो असली घर में जाने को हम लोग योग्य बने। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाई। तो सोचिए कि अगर हम ये सोसाइटी में नहीं आते, है ना, प्रभुपाद जी की आज्ञा नहीं पालन करते, तो सोचिए कि वो स्थानीय हमारे पास नहीं है, तो उस असली घर में कैसे जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बड़ी मेहनत से और कितनी जद्दोजहद के साथ प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद लीलामृत में सबने सुन रखा है, इतना संघर्ष है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि आप कौन है जो प्रभुपाद जी को जान सकता है। प्रभुपाद जी को जानने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू आर नो मी प्रॉपरली should read my books। आपको हम सबको प्रभुपाद जी को अगर जानना हो तो प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ के ही हम प्रभुपाद जी को समझ सकते हैं, वरना हम भ्रमित रहेंगे हमेशा। अरे नहीं, वो लोग भी तो भक्ति कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो अपने मनमानी ढंग से अपने भक्ति के विधि विधान बनाकर, है ना, महाप्रभु की आज्ञा कुछ फॉलो करते हैं, बनाए, तो वो फिर कर्मी बन जाते हैं, साजिया बन जाते हैं, जो प्रभुपाद जी की संस्था को छोड़ देते, वो कर्मी हो जाते हैं आगे चल के, है ना। तो इस प्रकार से हम कितने देख रहे हैं कि लोग अलग अलग ढंग से ये सब थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल टॉपिक है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन वो सब क्या है, वो कर्मी, उसका भी जो भजन होता है वो भक्ति में ही नहीं माना जाता, जैसे पता है वो कर्मी हो जाता है, तो उनके पुण्य कर्म जमा होता है। तो आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करना उनके लिए मुश्किल, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए भक्ति कर्म चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो है वो कंट्रोल होते हैं भक्ति से, है ना। रूप गोस्वामी ने बताया, और उसी रूप गोस्वामी के अनुयायी श्रील प्रभुपाद है, क्योंकि हम रूप अनुगा भक्त गाए जाते। और आगे चल के प्रभुपाद जी ये संस्था बनाया, तो फिर आगे चलकर एक और ये फिर टाइटल आया जिसमें कहते हैं प्रभुपाद अनुगा, इस तरह, है ना। तो इस प्रकार से, और फिर एक उदाहरण हम ये भी प्रभुपाद जी का, जैसे एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी का जो क्रेडिट है, हम सब जो अभी भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमने श्लोक सीखा, ये सब कहाँ से आया? प्रभुपाद का एम्पावरमेंट है, परंपरा के साथ, इसके बगैर हम नहीं कर सकते, है ना। जैसे अभी ऑनलाइन संघा का एडवर्टाइजमेंट आता है या हम फ्लायर भेजते हैं, तो उसके अंदर लिखा गोपी मनोहर जो एक नीचे लाइन लिखता है कि भाई बुक्स रीडिंग प्रभुपाद, है ना। तो आप लोग इसके बाद बुक्स रीडिंग का कार्य करते हैं, तो ये सबसे सर्वविशेष कार्य होता है ना। तो प्रभुपाद जी को यहाँ पे बताया कि हम उनकी कर्ज को चुका नहीं सकते, प्रभुपाद जी, या मतलब ऐसे बताएंगे, अगर हमारी उम्र ब्रह्मा जी के बराबर भी हो जाए तो भी हम श्रील प्रभुपाद जी और कृष्ण का जो ऋण है वो चुका नहीं सके। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है ना, प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक तरीका है प्रचार करके हम प्रभुपाद जी का कुछ ऋण हल्का कर सकते, कुछ। इसलिए तो भगवद गीता के अंदर श्लोक बोला, नाच तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियः पितामहः भागीरथः नाच तस्मात् प्रियतरो भुवि। अन्य इससे ज्यादा और कोई प्रिय नहीं हुआ है मुझे, भगवान कह रहे हैं, जो मेरे नाम का प्रचार करे, है ना। तो ये बुक्स पढ़ेगा जो, वो प्रचार करेगा प्रभुपाद जी, है ना। तो ये सबसे उत्तम प्रभुपाद जी ने विधि बताई, एक टेक्निक बताई
प्रचार करके हल्का कर सकते हैं कुछ। ये जितना भी हमें जो प्राप्त हुआ जो हम कर रहे हैं, है ना। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी को उनको ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी की कोई समस्या है, थोड़े से नर्वस होकर बैठे थे। तो प्रभुपाद जी लगता है कि आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरी एक ही प्रॉब्लम, मेरी कोई समस्या नहीं, बोला मेरी एक ही प्रॉब्लम। वो क्या है? बोला मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा सोचता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने मन की बात बताई, है ना। तो जो महाभागवत होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो ये होता है, वो हमेशा ही बड़ा करना। अब बड़ा करने का मतलब ये है कि वो क्या है, भक्तिमय कार्यों को स्टैब्लिश करना, है ना। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, है या नहीं। भगवान कृष्ण को आज से पहले कोई नहीं जानता, राधा कृष्ण की आराधना कोई नहीं करता, लेकिन ये किसकी कृपा से है? इस डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इसकी कृपा से हम प्रभुपाद जी के अ, अ, ये शास्त्रों को पढ़कर हम भगवान राधा कृष्ण को समझ पा रहे हैं। उनका प्रेम किस हद तक होता है, कैसे प्रेम की अवस्थाओं को पहुंचा जाना चाहिए, है ना, कैसे भक्ति करना चाहिए, ये सब विधि हमको बताइए। वरना आज भी हम लोग क्या करते हैं, 10-10 अगरबत्तियां जला रहे होते हैं, और एक अगरबत्ती अगर हनुमान जी को घुमा रहे हैं तो वही अगरबत्ती फिर कृष्ण को भी घुमा रहे होते हैं, है ना। सीनियर जूनियर को पता ही नहीं होता, है कि नहीं। मैं देखता हूँ काफी लोग इस तरह मंदिरों में जब जाते हैं तो लोगों को कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ भक्ति का नहीं पता, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमको पता चला है, प्रभुपाद जी के शरणागत जब हुए, प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़े, संस्था में आए, तब हमको पता चला। इसका मतलब प्रभुपाद जी का ऋण कितना है, तब जाके हम कृष्ण प्रेम को समझ पाए। ये भाव चैतन्य महाप्रभु के अंदर था, और ये राधा रानी का भाव है कि सब कृष्ण भक्त हो जाए। उसी मूड को लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे शास्त्रों की रचना की, उसी भाव को प्रकट कर रहे हैं, प्रचार कर, और राधा कृष्ण की आराधना, है ना। और अपनी जिंदगी को पूरा उन्होंने कष्टमयी कर दिया। प्रभुपाद जी के लिए तो आशीर्वाद ही था, है ना, लेकिन हम देखें कि कितना कष्ट। ये किसके लिए? हम सब जीवों को कृष्ण प्रेम देने की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यही है, कोई कंडीशन नहीं देते तो कृष्ण प्रेम देते, है ना। प्रभुपाद जी भी वही कृष्ण प्रेम देने के लिए ये सब प्रभुपाद जी अपने शास्त्रों को लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके शास्त्र, प्रचार से प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा संस्था बनाया, है ना। प्रीचिंग से जो प्रचार करता है वो कर सकता है, अद्भुत चीजें बना सकता है इस तरह। तो ये शिला प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने हमेशा बड़ा सोचता, तो बड़ा सोचने मतलब जो कृष्ण को स्टैब्लिश कर, कृष्ण पृष्ठाय भूतले। तो जब शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का एक समय ऐसा हुआ कि जब वो ट्रांसलेशन कर रहे थे तो 7वें स्कंद तक पहुंचे, 7वां स्कंद लिखा, और तो इसके बाद शिला प्रभुपाद ने 7वां स्कंद रोक दिया, बोला नहीं नहीं ये रोक। और वहां पे फिर शिला प्रभुपाद ने लिखे चैतन्य चरितमृत के जितने वॉल्यूम्स है ना, तीनों खंड, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, बोला भाई तीनों जो है लिखनी है 2 महीने के अंदर। तो वहां पे रामेश्वर प्रभु बैठे थे, और एक दो और सीनियर प्रभुपाद डिसाइबल बैठे थे। तो रामेश्वर प्रभु ने बोला प्रभुपाद दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट इजी। तो प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण का जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं। बोला हरे कृष्ण मूवमेंट, बोला इन द हरे कृष्ण मूवमेंट एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला सब कुछ संभव है। तो वहां पर क्या हुआ कि रामेश्वर प्रभु के अंदर शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या कि प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन किया। शक्ति नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी उनको आज्ञा दे रहे हैं, उनका पालन किया। तो वो पालन करने से 2 महीने के अंदर चैतन्य चरित्र सारी इन्होंने छापी, अद्भुत कार्य हुआ। तो ये प्रभुपाद जी का एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चैतन्य जो भगवद गीता है वो अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, और भागवत महापुराण जो है वो ग्रेजुएट स्टडी, और चैतन्य चरित्र पोस्ट ग्रेजुएट। और फिर जो वैष्णव जो सॉन्ग है वैष्णव भक्तों के द्वारा, शुभ भक्तों के द्वारा जो कंपोज किए गए, वो पीएचडी हम उसको लेते हैं इस तरह। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे 7वां स्कंद रोकर वो चैतन्य चरित्र वो 2 महीने के अंदर हुआ।
तो आज हम देख सकते हैं, आज हम साधना भक्ति में कितना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको काटना है, तो कितना मुश्किल है। लेकिन अगर वैष्णव की कृपा हो, प्रभुपाद की कृपा हो, तो वो अद्भुत कार्य कर सकता है, साधना भक्ति में दृढ़ हो सकता है। फिर साधना भक्ति में दृढ़ होगा तो उसका विश्वास और बढ़ जाएगा कृष्ण में। तो वो चैलेंजेस जो होगा उसको फेस कर सकता है, और उसका जो चैलेंजेस को जो फेस करेगा, उसका जो प्रभाव आएगा, है ना, वही वास्तव में विशेष कंट्रीब्यूशन हम सबके जीवों के कल्याण। तो इस तरह फिर एक व्यक्ति ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा, शिला प्रभुपाद, आप इतने सारे मंदिर बना रहे हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता है? इंडिया में इतने सारे बहुत सारे मंदिर हैं, जरूरत नहीं है हमें इतने मंदिर बनाने की। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इतने सारे बच्चे क्यों पैदा करें? प्रभुपाद जी ने उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बच्चे तो अब जिसकी इच्छा है वो पैदा करता है। बोला, तुम अपने बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो? उसकी क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। तो वहां पर वो जो है ना समझ गए प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को। तो हम अपना मंदिर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तुमको अपनी संतान चाहिए, इसलिए हमको भी अपना मंदिर चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि वास्तव में ये सोसाइटी की जो इस्कॉन के नाम से जो मंदिर बने हैं, इसी मंदिर में हम अपनी सेवा साधना करके, भगवान की आराधना करके, अपने आप को शुद्ध करके कृष्णमयी, कृष्ण कॉन्शियस बनाकर, है ना, जो हमारी सोसाइटी का नाम भी यही है, क्योंकि मंदिर का भी नाम यही है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। इंटरनेशनल तो इसलिए है क्योंकि कृष्ण भावना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, या किसी दूसरे, ऐसा नहीं, पूरे दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए है। क्योंकि भगवान की भक्ति तो सबके लिए है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी को। क्या होना चाहिए सोसाइटी के अंदर? कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियस होनी चाहिए। तो कृष्ण भक्ति हमें इसी मंदिरों में मिल सकती है। सही रूप, सात्विकता, डिसिप्लिन, हर चीज के बारे में, उठना बैठना चलना, कैसे बोलना, ये सब हम सीखते हैं इसी मंदिर से, है ना। तो इन सारे सदाचारों को सीख कर, सारी विधियों को सीख कर, इन सारे भागवत के विषयों को सीख कर अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना, कैसे उनको फेस करना है, ये जब हम सीखेंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे, फिर वास्तव में हम जीव कल्याण कर पाएंगे, है ना। अभी तो नाम में रुचि, 3 सिद्धांत तो बताएंगे भक्ति के प्रभुपाद जी का। नाम में रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, है ना। नाम में रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। तो अभी तो नाम में रुचि आप देख लीजिए कि हमारी कहाँ तक है ना। और फिर जब नाम में रुचि अगर अच्छी होगी तो ही जीवे दया कर पाओगे, और जीवे दया दया जो करेगा वही वैष्णव की सेवा कर सकता है। वैष्णव की सेवा का मतलब, जीवे दया करने का मतलब है कि लोगों को कृष्ण नाम देना, ये जीवे दया। अब कृष्ण नाम वही दे सकता है जो कृष्ण का नाम लेता होगा, अच्छा, वही दे सकता है ना। और वैष्णव सेवा वही कर सकता है जो जीवे दया करेगा, वही वैष्णव की सेवा करता है। मतलब प्रभुपाद को खुश कर सकता है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं प्रचार से आप हल्का कर सकते हो थोड़ा, ये ऋण को ऐसे चुका नहीं सकते। हाँ, ये वैष्णव सेवा का मतलब ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये इसका। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 तत्वों को समझना पूरा जीवन लगेगा, देखिए। तो इस तरह हम देख सकते हैं। और फिर एक बार श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के अंदर थे, तो उस समय कुछ लोग आए, और वो उसमें कुछ विदेशी भी थे। तो वो प्रभुपाद जी से पूछने लगे कि प्रभुपाद जी, आप साधु हो, सन्यासी हो, और तो आप कुछ जादू दिखाओ, है ना? आप कुछ जादू दिखा सकते? प्रभुपाद जी ने बोला कि भाई मेरा तो एक ही जादू है। प्रभुपाद जी के साथ डिसाइपल थे, विदेशी डिसाइपल थे बहुत सारे। प्रभुपाद जी ने बोला, ये देखो, ये सारे विदेशी डिसाइपल हैं जो कि मायावाद में और भौतिकता में लिप्त थे। 4 नियम का जो भंग करना, है ना, ये सब उल्टे कार्य करते, नशा करना, जुआ खेलना, मांस खाना, पराई पुरुष स्त्री गमन करना, है ना, ये सारे कार्य, ये सब छोड़कर, और ये संस्कृति की भी नहीं है हमारे, और आज ये हेडशिप किए हैं, सैफरन धारण किए हैं, है ना, शिखा रखे हैं, और भगवान के पवित्र नाम का जप है। तो बोला, इस यही मेरिकल है, तो ये जादू है। ऐसे ही रिलेटेड एक और स्टोरी है जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसे योगी थे जो कि आग निकाल के दिखाते थे, कोई
मतलब जो है मतलब अलग अलग जादू, मतलब सोना प्रकट करके दिखाना या कुछ ऐसा, इस तरीके की मतलब शक्तियां थी उनके अंदर, सिद्धियां थी, तो वो करके दिखा। तो प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद वहां तो ऐसे एक योगी वो आग निकाल के दिखा रहा है, वो ऐसे आप देखिए कि क्या है, मतलब इसको कैसे हम करें, तो आप प्रभुपाद जी देखिए। तो बोला अच्छा वो क्या क्या कर सकता है, प्रभुपाद जी ने पूछा। बोला प्रभुपाद जी वो सोना निकाल रहा है, ये कर रहा है। तो प्रभुपाद जी गए उनके पास, प्रभुपाद जी ने वो क्या क्या कर सकता है। बोला मैं सोना बना सकता हूँ, मैं आग निकाल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें। प्रभुपाद जी ने बोला कि एक काम कर सकते हो। बोला आप जन्म मरण के चक्कर से जीव को निकाल सकते हो। प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने बोला उस योगी ने कि ये मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने बोला कि वो मैं कर सकता, जन्म मरण के चक्कर से मैं निकाल सकता। तो जन्म मरण के चक्कर से निकालना है ना, कितना मुश्किल है। सबसे ज्यादा खतरनाक काम ये शिला प्रभुपाद जी कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी कोई सिद्धियां विद्या इत्यादि दिखाने के लिए नहीं है। हालांकि सिद्धियां भी बहुत सारी लीलाओं में प्रभुपाद जी ने बताई है अपनी। वहाँ पर इतना भी समय नहीं है, मेरे पास भी इतना समय नहीं है, तो 9:30 हो रहे हैं यहाँ पर, सेट करना भी है। जहाँ पर मैं रोकूंगा, और शिला प्रभुपाद जी से हम सब हाथ जोड़कर आज एक चरण कमलों में, आप सब तो हाथ जोड़े और उनके चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे कि हे शिला प्रभुपाद, हमारे जीवन में जो भक्ति के प्रति जो रुकावटें हैं, भक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो त्रुटियां होती हैं या जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को आप दूर करें। क्योंकि शुद्ध वैष्णव प्रभुपाद जी से यही मांग सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण मांगना भावित है, तो उनसे कृष्ण मांगना चाहिए शुद्ध वैष्णव से। जब ये मांगेंगे तो हमारे जीवन में अपने आप सारा ऐश्वर्य आ जाएगा, क्योंकि जो भक्ति देवी है वो महारानी है और बाकी सब उनके दास है, नौकर। तो शिला प्रभुपाद जी आपको भक्ति दे हम सब, तो इसलिए है शिला प्रभुपाद हमें शक्ति प्रदान करें। नाम जप में हमारी गलतियां हैं, नाम जप में हमारी रुचि नहीं, और इंद्रिय विषयों के प्रति हमारा मन या भागता रहता है। तो हमारे मन को संयम करने में जो कमियां हैं, उस कमी को प्रभु है शिला प्रभुपाद आप दूर करें। तो इस तरह शिला प्रभुपाद जी से चरण कमलों में ये प्रार्थना करते हैं। आज शिला प्रभुपाद के तिरुभाव तिथि पर 12 बजे तक शिला प्रभुपाद जी का उपवास करना चाहिए, और उसके बाद अनाज ले सकते हैं। तो सबका धन्यवाद बोलकर शिला प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। बहुत प्रेम। तो कुछ 2 मिनट हम ले सकते हैं। प्रभु पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। और आज आई थिंक नित्या माता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। माता जी का परसों क्लास है, तो आप दोनों का मैं बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से आप लोग कराची में जो है इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की वाणी को फैला रहे हैं। अपने जो गुरु महाराज है उनके वचनों का पालन करने के लिए आप लोग ने इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, खाली ऑलरेडी टाइम हो चुका है। एक ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगर किसी का है तो we'll take only one question. It's already late. If anybody has, please raise your hand, please. Okay, looks like no question. Thank you प्रभु जी, thank you, धन्यवाद, प्रणाम आपको, आपकी सेवा को। और आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना संग दीजिए हम लोगों को, और ऐसे ही आपसे कुछ अच्छे वचन हम लोग को हमें सुनिए। इतना अच्छा आपने प्रभुपाद जी के बारे में और सब सब जो चीजें थे इतने अच्छे से आपने बताई प्रभु। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं और अच्छा अपने आप को प्रचार कार्य में जोड़ सकूं। जय, हम प्रभुपाद से ही प्रार्थना करेंगे कि आपको और शक्ति दे। आप ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं, और शक्ति दे। आप दोनों भाई बहन मिलके जबरदस्त और पूरे पाकिस्तान को
जो है और भी मतलब कृष्ण भावनामृत से भर दे। विल प्रे फॉर दैट आज के दिन। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुविंद की जय। इसलिए शाम सुधा प्रभु जी की जय। नित्य लीला माता जी की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। This congregation भी जय। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम प्रभु। दंड प्रणाम। ओके।